स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, गोरखपुर। स्टूडेंट्स, मैं अपने 5वें वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध हूं, फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के। स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो भी तीनों पेपर्स से मिक्स्ड है, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर भी होगा, डिस्क्रीट भी होगा और स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स भी होगा। स्टूडेंट्स, तो मैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में अनुरोध करता हूं, कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब जब मैं अपने वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप एक भी वीडियो मिस न कर सके। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। K-map is used for, Karnaugh map is used for what? For logic minimization. Students, A is the right answer for question number 1. ये जनरली आप जानते हैं बेसिक क्वेश्चन है। स्टूडेंट, K-map को Karnaugh map ही कहते हैं, is a pictorial method used to minimize Boolean expressions without having to use Boolean algebra, theorems and equation manipulations. Student, so here A is the right answer for question number 1. Now question number 2. While converting the binary tree into an extended binary tree, all the original nodes in the binary tree are internal nodes on extended tree. Students, A is the right answer for question number 2. Here I have given the explanation. मैंने explain भी किया students को. The nodes from the original tree are internal nodes and special nodes are external nodes. All external nodes are leaf nodes and internal nodes are non-leaf nodes. So here, while converting the binary tree into extended binary tree, all original nodes in the binary tree are internal nodes on extended tree. So here, A is the right answer for question number 2. Now, question number 3. The in-order traversal of the tree will yield a sorted listed of element of tree in B is the right answer. Student, binary search tree. यानी यहां स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ट्री का ट्रेवर्सल की बात करें, अगर ट्री किसी एक ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें तो वो शॉर्ट होगा लिस्टेड एलिमेंट किस फॉर्म में, तो वो बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में वो शॉर्टिंग होगी। स्टूडेंट, और बाइनरी सर्च ट्री क्या है? बाइनरी सर्च ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ क्लास ऑफ बाइनरी ट्रीज. It's a class of binary tree in which the nodes are arranged in a specific order. जिसमें nodes specific order में arrange होते हैं. This is also called ordered binary tree. इसे ordered binary tree भी कहते हैं. So here B, binary search tree, is the right answer for question number 3. Now question number 4. Which of the following is are the universal logic gates? इनमें से कौन सा जो है universal logic gates है? Student, or and not, नहीं, and नहीं, C, NAND and NOR. NAND and NOR, C is the right answer for question number 4. यानी NAND और NOR जो है ये universal logic gates हैं students. So C is the right answer for question number 4. Now question number 5. In a binary tree, certain null entries are replaced by a specific pointers which points to nodes higher in the tree of for efficiency. These special pointers are called, यानी एक बाइनरी ट्री में सर्टेन नल एंट्रीज जो है वो रिप्लेस्ड होती है बाय स्पेशल पॉइंटर के थ्रू रिप्लेस्ड होती है कुछ नल एंट्रीज विच पॉइंट्स टू द नोड हायर इन द ट्री फॉर एफिशिएंसी, जो कि पॉइंट करते हैं नोड्स को हायर इन द ट्री फॉर एफिशिएंसी. इस तरह के स्पेशल पॉइंटर्स को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, इस तरह के स्पेशल पॉइंटर्स को हम थ्रेड कहते हैं. मैंने यहां एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट. In a binary tree, certain null entries are replaced by special pointers which points to nodes higher in tree for efficiency. These special pointers are called thread. A binary tree is made threaded by making all right child pointers that would normally be null point to the in-order successor of the node, if it exists. There are two types of threaded binary trees.
दो तरह की थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज होती हैं स्टूडेंट। तो यहां अगर हम बात करें उस स्पेशल पॉइंटर्स की, वो कौन सा स्पेशल पॉइंटर है, तो थ्रेड इज द स्पेशल पॉइंटर। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन अ हेड ट्री values in a node are greater than every value in children of it। यानी हेड ट्री के अंदर वैल्यू इन नोड, माने नोड पे जो वैल्यूज होती हैं, आर ग्रेटर देन एवरी वैल्यू इन चिल्ड्रन ऑफ इट। यानी हर चिल्ड्रन नोड्स की वैल्यू, यानी पेरेंट नोड पे जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो बड़ी होती है चिल्ड्रन नोड पे मौजूद जो वैल्यू से। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। यहां मैंने एक्सप्लेन भी सेम वही चीज बात को बताया है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्राफ इफ ई इक्वल टू यू वी। स्टूडेंट ग्राफ आप समझ रहे हैं, यू एंड वी जो है ये वर्टिसेस हैं और ई एजेस हैं जो दोनों वर्टिसेस को यू एंड वी को कनेक्ट कर रहा है। तो यहां यू इफ यू इक्वल टू यू कॉमा वी का मतलब क्या स्टूडेंट, कि ई बिगिंस एट यू एंड एंड एट वी। क्यों, कैसे, u और v जो है ये दो वर्टिसेस हैं स्टूडेंट, इन दोनों वर्टिसेस को जोड़ने के लिए e एज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए b इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सेम मैंने एक्सप्लेन भी करने का प्रयास किया स्टूडेंट यहां पे। इसके बाद डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो स्टूडेंट यहां हम लोग को पता है कि ट्रांसलेटर की बात अगर करें स्टूडेंट, तो ट्रांसलेटर में कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। जिसमें से कंपाइलर और इंटरप्रेटर की अगर बात करें, तो कंपाइलर जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को एट अ टाइम, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, रन टाइम में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है स्टूडेंट। सो हियर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। सेम आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Which one of the following technique is not used in the binary tree? यानी कौन सी वो तकनीक है जो बाइनरी ट्री में यूज नहीं होती है। तो स्टूडेंट बाइनरी ट्री में जो तकनीक यूज होती है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया भी है। तो इसका मतलब देखिए बी, सी और डी, इन तीनों में वो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर आ गया। यानी कौन सा है जो नहीं है टेक्निक, तो स्टूडेंट एक अकेला बच गया, ए रैंडमाइज्ड ट्रेवर्सल इज नॉट used in the binary tree। So A is the right answer for question number 9 student। Now question number 10, a linear list in which each node has point to the predecessor and successor nodes is called doubly linked list। यानी linear list में स्टूडेंट जब हर एक नोड पॉइंट करता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर मतलब नोड्स को, तो उसको डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। आपको पता है ना, प्रीवियस नोड्स का भी एड्रेस होल्ड करता है वो, नेक्स्ट नोड्स का भी एड्रेस होल्ड करता है, यानी दो एड्रेस फील्ड होते हैं स्टूडेंट उसमें। इसलिए इसका सही उत्तर है डबली लिंक लिस्ट। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ पोसेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज बोथ अ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज टर्म्ड एज लैटिस। माने पोसेट में एवरी पेयर, जब हर एक पेयर एलिमेंट जो है वो दोनों रखता है, लीस्ट अपर बाउंड भी होल्ड करता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होल्ड करता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, लैटिस कहलाते हैं। और यही लैटिस की परिभाषा भी है, डेफिनेशन भी लैटिस की यही है स्टूडेंट। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन, a lattice can contain sub-lattice which are the subsets of that lattice। So B is the right answer for question number 11। Now question number 12, if every node U in G adjacent to every other node V in G, then that graph is called complete graph। यानी हर एक नोड जो है U जो है G मतलब ग्राफ G में adjacent है every other node V जो जितने भी अदर नोड V हैं उनमें ग्राफ G में, तो ऐसे में उस तरह के ग्राफ को हम लोग कंप्लीट ग्राफ कहते हैं स्टूडेंट। सो इफ एवरी नोड U in G adjacent to every node other node V in G, that type of graph is also called complete graph। So 12 का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन B। Now question number 13, a graph is said to be dash if every node U in G is adjacent to every no other node V in G।
दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, एक मिनट, जैसे क्वेश्चन ये लगभग रिपीट सा हो गया है, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं तो सो दैट ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है स्टूडेंट, लेकिन यहां रिपीट हो गया है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सेम आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ ग्राफ इज सेड टू बी डैश इफ इट्स एजेस आर असाइंड डाटा। मतलब एज ग्राफ को क्या कहते हैं जहां एजेस असाइंड डाटा होते हैं, जिसके एजेस, तो इसको लेबल्ड कहते हैं स्टूडेंट। इसको टैग नहीं कहते हैं, मार्क नहीं, स्टिक्ड नहीं, लेबल्ड। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अ ग्राफ इज सेड टू बी लेबल्ड इफ इट्स एजेस आर असाइंड डाटा। अ ग्राफ लेबलिंग इज द असाइनमेंट ऑफ लेबल्स स्टूडेंट। माने ग्राफ लेबलिंग क्या है? असाइनमेंट ऑफ लेबल्स, ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर टू एजेस and or vertices of the graph. When edge labels are members of an ordered set, it may be called as a weight graph. So here labeled C is the right answer for question number 14. Now question number 15, स्टूडेंट यहाँ देखो आपके सामने एक वेन डायग्राम दिया गया है और ये उसमें शेडेड एरिया बताया गया है कि क्या डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट। तो शेडेड एरिया जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, that represents B is the right answer for question number 15 student. So here shaded area का सही उत्तर है B. Now question number 16, 3 standard ways of traversing a binary tree T with root R कौन से हैं? तो 3 स्टैंडर्ड जो वे ऑफ ट्रैवर्सिंग है स्टूडेंट, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे प्री ऑर्डर, कैसे निकालेंगे पोस्ट ऑर्डर और कैसे निकालेंगे इन ऑर्डर। तो 3 स्टैंडर्ड कौन से हैं ट्रैवर्सिंग के लिए ट्री के, बाइनरी ट्री के? तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, algebra of logic is termed as arithmetic logic. See, the algebra of logic is termed as arithmetic logic. Student, arithmetic logic कहते हैं जहां the variables that can have 2 discrete value false 0, true mean 1, and the operations of logical significance are dealt with Boolean algebra. तो हम कहेंगे कि algebra of logic is termed as arithmetic logic. It means C is the right answer for question number 17. Now क्वेश्चन नंबर 18, यहां स्टूडेंट ट्री के ट्रैवर्सल की बात कर रहा है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ट्री रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे E A C K F H D B G। देन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा स्टूडेंट? तो जनरली मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट, यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग कैसे चलते हैं। प्री मतलब पहले रूट का मूवमेंट होता है स्टूडेंट, रूट लेफ्ट राइट। जैसे इन ऑर्डर में क्या है? इन कौन होगा? इन बिटवीन, रूट विल बी इन बिटवीन, तो लेफ्ट रूट राइट यानी रूट इन बिटवीन होगा। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? रूट लास्ट में होगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और ऐसे में सही उत्तर जो हमें प्राप्त होगा स्टूडेंट वो होगा बी। तो 18 का सही उत्तर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट ये तो सेट की परिभाषा है और सेट इज अ वेल नोन वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। तो सेट क्या है? वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया फॉर्मूला स्टूडेंट, उसका डेफिनेशन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन और थॉट, एंड द गॉड कैंटर इज द फादर ऑफ सेट थ्योरी। A set may also be thought as a grouping together of single objects into a whole. So set is the right answer for question number 19. Students, which of the following can be considered as a discrete object? किसको discrete object? तो student, when we will talk about the discrete object, तो हमको integer की बात करनी पड़ेगी, rational numbers की बात करेगी, हमको people की बात करनी पड़ेगी, यानी ये तीनों बातें करनी पड़ेंगी student when we will talk about the discrete objects. तो ऐसे में ये तीनों ऑप्शंस A B C के रूप में दिए हुए हैं, तो D विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, इंटीजर रैशनल नंबर्स बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोटिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स, automobiles, houses, peoples are all discrete objects. So D is the right answer for question number 20. Now question number 21, if X is a set, then set contains an integer which is neither positive nor negative, then set X is, मतलब अगर एक सेट X is a set, एक सेट है
एंड सेट कंटेन करता है इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है, विच इज नाइदर जो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो ऐसे सेट एक्स को क्या कहेंगे हम लोग? तो वो ऐसे सेट एक्स को कहेंगे नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट कहेंगे। तो नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट का ऑप्शन कहां दिखा रहा है? हम केवल नॉन एम्प्टी नहीं कहेंगे, केवल फाइनाइट नहीं कहेंगे, हम नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट दोनों कहेंगे स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में। तो D is the right answer for question number 21. Now question number 22, if a set contains 3 elements then number of subset is, तो हम लोग स्टूडेंट 2 raised power n के थ्रू हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कैलकुलेशन में। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 2 raised power 3 मींस क्या? 8 होगा। 8 ऑप्शन में देखिए, D ऑप्शन में 8 दिख रहा है, तो इसलिए D is the right answer for question number 22। यहां देखिए, फॉर एलिमेंट विद n एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised power n। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्राप्त होगा और 22 का सही उत्तर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अ बाइनरी ट्री whose every node has either 0 और 2 children is called extended binary tree। यानी एक बाइनरी ट्री में जिसके हर एक नोड जो है या तो 0 चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन रखते हैं, तो ऐसे ट्री को हम लोग एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है स्टूडेंट, अ बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एवरी नल सब ट्री ऑफ द ओरिजिनल ट्री विद स्पेशल नोड्स। सो स्टूडेंट्स, extended binary tree is the right answer for question number 23. Now question number 24, dash is used to implement the boolean function। तो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट हम लोग, लॉजिकल नोटेशन नहीं, अरिथमेटिकल लॉजिक्स नहीं, एक्सप्रेशंस नहीं, हम वी आर यूजिंग लॉजिक गेट्स to implement the boolean functions। So C is the right answer for question number 24. Now question number 25, the discrete mathematics is branch of mathematics involving discrete elements that uses algebra and arithmetic। यानी ये discrete mathematics जो है ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें जो इन्वॉल्व करता है डिस्क्रीट एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करता है और जो इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा और अरिथमेटिक दोनों का। इसलिए C is the right answer, both A and B। C is the right answer for question number 25। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट सेम को। What is a star tree? Star tree किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो star tree is a tree having a single internal vertex and n-1 leaves। That tree is called star tree। यानी ऐसे ट्री को जो सिंगल इंटरनल वर्टेक्स होल्ड करता हो और n-1 लीव्स हो, तो ऐसे ट्री को हम लोग स्टार ट्री कहेंगे। सेम आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर स्टूडेंट। तो A is the right answer for question number 26. Now question number 27, which option contain 2 equal sets? तो equal sets क्या है स्टूडेंट? equal sets 2 equal sets हैं, तो जैसे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होल्ड करेंगे, यानी x एंड y अगर यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ये 2 अलग अलग सेट्स हैं और इनको इक्वल सेट कहेंगे। क्या कि x में जितने एलिमेंट्स हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है y में भी हों और वो सारे एलिमेंट्स हों जो x में हैं। तो लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिशन को काउंट नहीं करते हैं सर स्टूडेंट। काउंट करते वक्त रिपीटिशन को एक बार लेते हैं। 5 अगर वैल्यू लिखी गई है और 5 2 बार रिपीट किया गया है तो एक वैल्यू को हम लोग होल्ड करेंगे। तो B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया एग्जांपल देकर स्टूडेंट, इसको जरूर देखिएगा इस एग्जांपल को, जहां मैंने बताया है कि किस प्रकार से इक्वल सेट क्या है और उसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, an undirected graph G which is connected and acyclic is called। यानी ऐसे अनडायरेक्टेड ग्राफ को जो कनेक्टेड है और असाइक्लिक है उसको क्या कहेंगे? तो दैट अनडायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड ट्री। उसको बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं कह सकते, साइक्लिक ग्राफ नहीं कह सकते, फॉरेस्ट नहीं कह सकते, उसे हम ट्री कहेंगे स्टूडेंट। तो C is the right answer for question number 28। स्टूडेंट्स यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और स्टूडेंट आप जरूर मेरे इन वीडियोस को देखिए, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि लगभग मैं मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए स्टूडेंट्स और एक एक पोर्शन एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको प्रिपेयर करें। एक बार फिर मैं कहूंगा स्टूडेंट कि अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं केवल यही नहीं रुकने वाला स्टूडेंट्स। मैं
आप सभी के लिए आने वाले समय में मैं कंपटीशंस को लेकर के भी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के भी पोर्शन लेके आने वाला हूं, वीडियो लेके आने वाला हूं स्टूडेंट्स। आज यहां पे हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।